Hello, good morning, student. Good morning, Morning, sir. sir. Screen is shared now. Yes, sir. Yes, sir. So, yeah, in previous lecture, I have discussed about something about CPU scheduling. Okay. So, I have discussed why scheduling is required. Scheduling is required uh, just because of that. If there are multiple processes are in ready queue, so process uh, have to choose one process at a time. Okay. So, which process a processor choose? Okay. So, this is called scheduling. Okay. So, there are two type of scheduling: preemptive scheduling, non-preemptive scheduling. Preemptive scheduling means that if a process is running and if any higher priority enters into the system, okay, higher priority process enters into the system, and if process is able to preempt that running process, okay, then it is called preemptive scheduling. If it is not able to preempt that particular process which is running, it is called non-preemptive. Okay, it means until unless when a process which is in an execution state, if it is completed, then new start program will start. Okay. So this is called non-preemptive. So all scheduling criteria or scheduling algorithms are maybe preemptive and non-preemptive. Okay. So OS scheduling criteria or scheduling algorithm is designed in such a way that preemptive and non-preemptive both can be implemented easily. Okay. So then I have discussed about CPU scheduler. So CPU scheduler CPU scheduler is nothing but it's a process, you can say, or it's a methodology or procedure or protocol which does scheduling. Okay, it is called CPU scheduler. It is also called short term scheduler because CPU is directly involved in that. That's why it is called short term scheduler. Okay, so what scheduler does is scheduler all the process which are ready to execute are stored in ready queue. So CPU scheduler, or you can say short-term scheduler, picks one process from the ready queue and send to processor for execution. Okay, so yeah, definitely the queue the queue is designed in various ways. Okay,
So the ways is called the scheduling algorithm. Okay. So CPU scheduling decision take place when a process switches from running to ready state, switching from waiting to ready and terminate. So it's all depend upon the process states. Okay, whether it is in ready and it moves to waiting, or it is in waiting condition and moves to ready, and it is ready state and comes into the running state. So there are various permutation and combination occurs. So uh, all these scheduling decision can be taken by seeing all these. Okay. So scheduling, if you are strictly following these 1 to 4, it is called non-preemptive. And if you are not strictly following, then it is called preemptive. It means that if process switches from running to waiting itself only, not forcefully, okay, then it is non-preemptive. But it is uh, forcefully changing from running to waiting state, or if it is forcefully changing uh, its state, okay, then it is called preemptive. Okay. So uh, for preemptive, we have to check, consider access to data, consider preemption while kernel in mode. Okay. Consider interrupts occurring during the crucial OS activity. Definitely preemption occur when there is an interrupt by any process or any high priority process enter into the system, then preemption may occur. Okay. So the main thing is that the interrupt. We have to see always the interrupt for preemption. Next come to dispatcher. Okay. So dispatcher it's, it's nothing but it's a uh, short-term scheduler. Dispatcher gives a dispatcher gives module dispatcher module gives control to the CPU. Okay, it gives control to the CPU, and it it is done. It involves switching context, switching to the user mode, jumping to proper location in the user program to restart that program. ठीक है. तो डिस्पैचर का मतलब ये नहीं है कि मतलब सिंपल डिस्पैच करना, सिंपल. ओके. तो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड डिस्पैचर. तो डिस्पैच करना मतलब यू हैव टू मूव फ्रॉम, जैसे एक लेटर को डिस्पैच करना है तो क्या होगा, इट 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 मींस दैट लेटर इज मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. ठीक है. तो अगर क्या है कि आप एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे मूव कर रहे हो तो डेफिनेटली स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट होगा, स्विचिंग टू यूजर मोड होगा, और क्या होगा, jumping to proper location in the user program to restart the program. So dispatcher come into the existence. Dispatch latency, definitely dispatching time जितना लगता है, this is called dispatch latency. Time it take for the dispatcher to stop one process and restart another. Okay. So this is called dispatch latency. नाउ कम टू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया. ये हमने थोड़ा सा छोड़ दिया था इसमें. तो अब देखो क्या है कि शेड्यूलिंग क्राइटेरिया का जो मेन चीज है वो दो चीज हम लोग देखते हैं. फर्स्ट वन इज वी हैव टू मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड थ्रूपुट. ठीक. तो शेड्यूलिंग क्राइटेरिया जो हम लोग देखेंगे तो दो चीजें हैं, दो वी हैव टू टेक, वी हैव डेफिनेटली टेकन इनटू कंसीडरेशन टू मैक्सिमाइज द CPU utilization and throughput. CPU utilization means we have to make CPU all time busy. Okay. We always try that CPU uh, did not come into ideal condition. Ideal condition में ना आने पाए CPU. मतलब ideal condition का मतलब है कि CPU is not working anything. तो हमें क्या करना है, we have to make available, you can say, or you can say we have to make available the resources and process to the CPU so that CPU is always busy with execution. Okay. तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम CPU यूटिलाइजेशन बढ़ाना है. ठीक है. मैक्सिमाइज करना है CPU यूटिलाइजेशन, CPU को एज मच एज CPU जितना वर्क करेगा उतना. ठीक है. तो दूसरी चीज क्या है, थ्रूपुट.
थ्रूपुट का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ प्रोसेस फिनिशेस देयर एग्जीक्यूशन पर यूनिट टाइम इज नोन एज थ्रूपुट। तो एक यूनिट टाइम में जितने प्रोसेस हम लोग एग्जीक्यूट करा लेंगे तो इसका मतलब थ्रूपुट हमारा बढ़ गया, और थ्रूपुट बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि हमने सीपीयू को यूटिलाइज ज्यादा से ज्यादा किया। ठीक है, क्लियर है? तो क्लियर है, तो ऐसा नहीं है कि हमें क्या करना है, स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इफ एनी प्रोसेस इज बिजी विद आईओ बाउंड प्रोसेस और मेमोरी, तो व्हेन देयर इज ए मेमोरी ट्रांसफर और आईओ ट्रांसफर, सीपीयू बिकम अवेलेबल टू अदर प्रोसेस। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रोसेस पे सीपीयू ऑक्युपाई कर रखा है एंड नाउ इट that particular process want to store some data into the memory, it means memory cycle come into the existence, comes memory cycle आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीपीयू ट्रांसफर करने में अगर 2-3 सेकंड लग रहा है तो इसके मतलब सीपीयू आइडल कंडीशन में आ जाएगा, नहीं। तो जब तक ट्रांसफर हो रहा है तब तक क्या होगा, सीपीयू दूसरे प्रोसेस पे स्विच कर जाएगा। ठीक, क्लियर है? दूसरे प्रोसेस पे स्विच कर जाएगा एंड व्हेन द ट्रांसफर इज कंप्लीट, सीपीयू अगेन मूव फ्रॉम द रनिंग प्रोसेस टू ओल्ड वन। ओके, पुराने वाले प्रोसेस पे आ जाएगा। ठीक, क्लियर है? तो इस तरह से हमें क्या है, स्मार्टली वर्क करना है तो सीपीयू यूटिलाइजेशन जैसे बढ़ सके। ठीक, तो when the CPU is busy executing the process at the time work is done and the work completed per unit time is called। ठीक है, ये तो हमने बता दिया आपको। तो थ्रूपुट का मतलब क्या है कि मैं नंबर ऑफ प्रोसेस दैट फिनिशेस देयर एग्जीक्यूशन पर यूनिट इज कॉल्ड थ्रूपुट। तो जितना अगर नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है एक यूनिट टाइम में, थ्रूपुट हमारा बढ़ता जाएगा। थ्रूपुट बढ़ा तो इसका मतलब सीपीयू यूटिलाइजेशन। अब देखो क्या है कि व्हेन वी आर generating or writing any algorithm for scheduling, we have to think about that which type of things we have to minimize. So we have to minimize turnaround time, waiting time, and response time. Okay. So firstly, we should know that what is waiting time or response time or what turnaround time. Waiting time is nothing but it's a time amount of time that a specific process need to wait in the ready queue. वेट का मतलब ये नहीं है कि आईओ बाउंड के लिए कोई वेट कर रहा है। वेट का मतलब ये नहीं है कि वो मेमोरी के लिए वेट कर रहा है। वेट का मतलब क्या है कि इट इज इन रेडी क्यू एंड वेटिंग फॉर प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट। ओके, तो वेटिंग टाइम का मतलब है कि प्रोसेसर का वेट कर रहा है प्रोसेस। ओके, क्लियर है? इसका मतलब ये नहीं कि कोई आईओ इवेंट के लिए वेट कर रहा है। क्लियर है? तो ये क्या कहलाता है, हमारा वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम का मतलब है कि प्रोसेस इज रेडी टू एग्जीक्यूट बट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोसेसर इट इज वेटिंग। ओके, सो दिस इज कॉल्ड वेटिंग टाइम। तो जितने टाइम के लिए वो प्रोसेसर को वेट किया दैट इज कॉल्ड वेटिंग टाइम। ठीक, रिस्पॉन्स टाइम, it is the amount of time in which the request was submitted until the first response is produced। तो ऐसे बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं है रिस्पॉन्स टाइम का। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या है कि एक हमने क्या किया, इवेंट अकर कराया और क्या कहते हैं कितने टाइम के बाद एक्नॉलेज हुआ, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम। तो कितना टाइम रिस्पॉन्स करने में लगा। ठीक, क्लियर है? तो हमने जो पहला रिस्पॉन्स दिया तो वो कितना टाइम में दिया। ठीक है, मेजर चीज है हमारा टर्न अराउंड टाइम। ठीक, टर्न अराउंड टाइम का मतलब है कि how much time a process how much time a process occupy with a process, how much time a processor occupies a process। एक प्रोसेस को कितने टाइम तक सीपीयू ऑक्युपाई किए रहता है, दैट इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। ठीक, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एग्जैक्ट रनिंग टाइम। तो मतलब क्या है कि जैसे एक प्रोसेस आया, प्रोसेस ने उसको ऑक्युपाई किया, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, और वो चाहे फिनिश हो रहा है, चाहे वो वेटिंग में चला जा रहा है, चाहे टर्मिनेट हो जा रहा है या सस्पेंड हो जा रहा है। ठीक, क्लियर है? तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस को प्रोसेसर कितने टाइम के लिए ऑक्युपाई करता है, दैट इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। ठीक, क्लियर है? इट इज द टाइम of it is the calculation of total time spent waiting into the memory, waiting in the queue and executing on CPU। The period between process submission and completion time is the called termination turnaround time। ठीक है, तो वेटिंग टाइम क्या है हमारा, वेटिंग टाइम कितने टाइम के लिए वेट कर रहा है प्रोसेस के लिए। रिस्पांस टाइम, हाउ मच टाइम taken to giving the response, first response, turnaround time,
for how much time the processor is occupied a process is called turnaround time. अब देखो क्या है कि कुछ चीजें हैं जो हमें थोड़ा ये देखनी पड़ेंगी, ठीक है, और ये थोड़ा सा समझ लेना। तो कई सारी चीजें, एक हमारा कंप्लीशन टाइम है, एक हमारा टर्न अराउंड टाइम है, वेटिंग टाइम है, ठीक। तो कंप्लीशन टाइम क्या है? टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन, मींस व्हेन ए प्रोसेस इंटर इनटू द सिस्टम एंड एग्जिट फ्रॉम द सिस्टम। एग्जिट मतलब क्या है कि सेकेंडरी मेमोरी से रैम में गया, कंप्लीट हुआ एंड एंटर्स इनटू द हार्ड डिस्क। तो इट इज कॉल्ड कंप्लीशन टाइम, पूरा टाइम कंप्लीट करने में कितना लगे। एक टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम कितना था और उसमें अराइवल टाइम कितना था, ठीक, क्लियर है। तो वो क्या कहलाता है? हमारा टर्न अराउंड टाइम, ठीक, क्लियर है। अभी हम क्वेश्चंस कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या होता है कि हाउ मच टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट माइनस हम उसमें क्या कर लें, हाउ मच टाइम इट टेक टू अराइव, ठीक, क्लियर है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ। जैसे आप क्या करते हो, आपके पेरेंट्स को लगता है कि आप 8 बजे घर से निकल गए, ठीक है, और आपकी क्लास 9 बजे स्टार्ट होती है, ठीक, क्लियर है। तो और 9 बजे से 10 बजे तक की पहली क्लास है, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो क्या है कि अगर देखा जाए तो आप क्या है कि अगर 1 घंटे की क्लास है तो आपका जो क्या है ना, आपने एक्चुअल जो मतलब पढ़ाई करने आ रहे हो आप ना, तो एक्चुअल कितना पढ़ाई किया? आप 9:05 पे इंटर किए और 10 बजे आपका क्या कहते हैं क्लास ओवर है, तो 55 मिनट यू स्पेंट ऑन स्टडी। लेकिन अगर क्या है, टोटल कंप्लीशन टाइम क्या है, आप 8 बजे चले और क्या कहते हैं 10 बजे तक के क्लास किए, ठीक, क्लियर है। तो अगर देखा जाए तो इट टेक्स 2 आवर्स, तो इसका मतलब कंप्लीशन टाइम इज 2 आवर्स। बट अगर देखा जाए तो उसमें क्या है, एक्चुअल कितना स्पेंड हुआ, तो वो क्या कहला गया हमारा कंप्लीशन टाइम में अराइवल टाइम माइनस कर देंगे। तो अराइवल टाइम आपका कितना है, 65 मिनट, ठीक है। 8 बजे निकले और 9:05 पे आप पहुंचे, तो 65 मिनट आप उसको माइनस कर देंगे, ठीक, क्लियर है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, टर्न। वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम क्या कहलाता है हमारा, टाइम डिफरेंस बिटवीन टर्न अराउंड टाइम एंड बस टाइम, ठीक। हाँ, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, बस टाइम शायद मैंने आपको बताया था कि नहीं? बस बस टाइम हमने आपको बताया था, ठीक। बस टाइम का मतलब क्या है कि एक्चुअल में क्या है कि कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। एक्चुअल में एक प्रोसेसर ने एक प्रोसेस को कितना टाइम दिया, वो क्या कहलाता है हमारा बस टाइम, ठीक। होता क्या है कि जैसे एक प्रोसेसर ने एक सीपीयू हम कहेंगे, सीपीयू ने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, ठीक। एंड देन मेमोरी ऑपरेंड इज रिक्वायर्ड। तो क्या होगा, प्रोसेसर क्या करेगा, मेमोरी से डाटा ट्रांसफर कराएगा, ठीक, क्लियर है। तो वो मेमोरी पे चला गया, तो मेमोरी डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक। इतने टाइम के लिए सीपीयू अलग चला गया। तो अब देखा जाएगा तो 2-3 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट किया, उसके बाद मेमोरी साइकिल चला गया, मेमोरी बस्ट हो गया, इसके बाद फिर सीपीयू बस्ट आया, फिर वो आईओ के लिए ट्रांसफर हो गया, ठीक। तो क्या होगा कि एग्जैक्टली एक सीपीयू कितने टाइम प्रोसेस को दिया, वो क्या कहलाता है हमारा बस्ट टाइम। तो वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम में अगर हम बस टाइम माइनस कर दें, ठीक, तो वो क्या कहलाता है, वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, देन इट इज कॉल्ड वेटिंग टाइम। तो ये इतना टाइम क्या रहता है, वेट करता है। जैसे मेमोरी ट्रांसफर हुआ, ठीक, इसके बाद इट कम्स इनटू द रेडी क्यू टू टू वेट फॉर सीपीयू, ओके, क्लियर है। तो ये क्या कहलाता है हमारा एक्चुअल वेटिंग टाइम। तो उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, या हम कह सकते हैं वेटिंग टाइम में स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो ये भी हम कह सकते हैं कि एक प्रोसेस कितने टाइम पे स्टार्ट हुआ और वो अराइव कब हुआ, ठीक, क्लियर है। तो ये क्या कहलाता है, कुछ ये है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो थोड़ा सा लिटिल बिट वो कंफ्यूजन है, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखो आते हैं शेड्यूलिंग टाइप पे। तो शेड्यूलिंग टाइप कितने तरीके के शेड्यूलिंग है, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ शेड्यूलिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट,
shortest remaining time, priority scheduling, round robin scheduling and multi level queue scheduling। ठीक है, तो ये इतने टाइप के हमारे पास शेड्यूलिंग। ठीक, तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिकली क्या है कि इसमें न्यूमेरिकल आता है और दो न्यूमेरिकल आएगा, 10-15 नंबर का हमेशा आता है, तो इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ना। और हमने आज कहा था कि कॉपी और पेन वगैरह लेके बैठना। ठीक है, नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, हमें वेटिंग टाइम फाउंड आउट करना है, एवरेज वेटिंग टाइम फाउंड करना पड़ता है, या टर्न अराउंड टाइम हमें फाइंड करना है। ठीक, क्लियर है? तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आया है या क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, ये सारी चीजें हमें थोड़ी सी देखनी है। तो नाउ मूव टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक, जैसे इसका नाम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इट मींस दैट कि इट डज नॉट डिपेंड कि कौन सा प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी वाला, लो प्रायोरिटी, आई डोंट नो। ठीक है, जो पहले प्रोसेस आया है उसको पहले एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि देयर आर 10 प्रोसेस फ्रॉम P1 टू P10। ठीक, क्लियर है, P1 टू P10 है हमारे पास। ठीक, P1 टू P10। ठीक, ठीक है, अब देखो क्या है कि इसमें P2 पहले आया, देन P3 आया, देन P6 आया। ठीक, देन P9 आया, फिर P10 आया एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद P5 आया, फिर P1 आया। ठीक, क्लियर है? तो अब देखो क्या है कि जो शेड्यूलिंग बनेगी, शेड्यूलिंग क्या कहती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मींस द प्रोसेस व्हिच इंटर्स फर्स्ट इट विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, ओके, बाय द प्रोसेसर। तो there are 10 process and in ready queue P2 comes first, then P3 comes, then P6 comes, फिर P9 comes, फिर P10 comes, फिर P5 comes, फिर P1 comes and so on. So it means that P2 will be executed first. Then after when P2 completes its execution, then P3 will start. After completion of P3, P6 will be executed, and after P6 completion, P9 will be executed and so on. So the process which comes first will be executed first and other have to wait. तो अब देखो क्या है कि जो अगर यहाँ पे देखो क्या है, P2 का अराइवल टाइम सबसे कम है, P1 अगर देखें यहाँ पे तो P1 का अराइवल टाइम सबसे नॉट यू कैन से अराइवल टाइम, ठीक है, थोड़ा ज्यादा होगा। वेटिंग टाइम अगर देखा जाए तो P2 का वेटिंग टाइम बिल्कुल नहीं है, इट स्टार्ट व्हेन इट एंटर्स इनटू द सिस्टम, द CPU स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन। ठीक है, P3 का वेटिंग टाइम थोड़ा बढ़ेगा, फिर P6 का भी वेटिंग टाइम बढ़ेगा, P9 का भी बढ़ेगा, P10 का बढ़ेगा, P5 का बढ़ेगा और P1 का बढ़ेगा। अब देखो क्या है, कोई बताएगा, एनीवन? जो वेटिंग टाइम है वो अब देखो बताओ किस पे डिपेंड करेगा, कोई बताए कि जो वेटिंग टाइम है वो किस पे डिपेंड है? थोड़ा सा इंटरेक्ट करो तो पता चले, पता नहीं तुम लोग सो जाते हो क्या है। हाँ बताओ। जो वेटिंग टाइम है, जैसे P2 है, इट कम्स into the system and stored into the ready queue and start execution because it comes first. Then and second number P3 comes. Okay, so after completion of P2, P3 will be started. Okay, and after completion of P3, P6 will. तो अब देखो क्या है कि जो इनके कंसिक्वेंस है, मतलब P3, P6 और इन सबके जो क्या कहते हैं, P6, P9, P10, P5, the waiting time of P6, P9, P10, P5, P1, P3 will depend upon what? कोई बताएगा? ऋषभ सिंह बताओ जरा, रोल नंबर 90, ऋषभ सिंह। completion time of previous processes. कंप्लीशन टाइप ऑफ प्रीवियस प्रोसेस, वेरी गुड। ठीक, क्लियर है? तो क्या होगा कि P3 कितना वेट करेगा, जितना P2 में P2 को एग्जीक्यूट करने में टाइम लगा। ठीक,
तो इसका मतलब क्या है कि बस टाइम, ठीक है। तो क्या होगा, क्वेश्चन जो भी दिए रहेंगे वो क्या रहेंगे, बस टाइम इज प्रोवाइडेड कि P2 में कितना टाइम लगेगा, P3 में कितना टाइम लगेगा, P6 में कितना टाइम लगेगा। तो अब देखो क्या है, P3 का जो वेटिंग टाइम होगा दैट विल डिपेंड अपॉन P2, P6 का जो वेटिंग टाइम होगा दैट विल डिपेंड अपॉन P3 एज वेल एज P2, P9 का जो वेटिंग टाइम होगा दैट विल डिपेंड अपॉन P6 एंड P3, ठीक। P10 का P9, P6, P3, P2 इस पर डिपेंड करेगा, ठीक, क्लियर है। और इसी तरह से क्या होगा, जो कंप्लीशन टाइम है वो भी क्या होगा, डिपेंड करेगा द प्रीवियस वन प्रोसेस, and as well as turnaround time is also depend upon the previous process, okay, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि अब समझ में आ गया होगा कुछ, ठीक है। तो हम अगर अब हमें जैसे कहा जाए कि व्हाट विल बी द वेटिंग टाइम फॉर P2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि P2 का जो क्या कहते हैं वेटिंग टाइम होगा, जैसे P2 का बस टाइम 1 है, इसका 3 है, इसका 4 है, ठीक है, P6 का, P9 का 5 है, ठीक। तो वेटिंग टाइम कितना होगा, कितना होगा बताओ, 1 + 3 + 4 + 5, मतलब क्या हो गया, एक तरीके से 3 + 1 4 4 8 5 13 सेकेंड अगर मान लेते हैं सेकेंड्स में, तो इट मीन्स P10 हैव टू वेट फॉर 10 सेकेंड। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, अराइवल टाइम भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक, क्लियर है। ये तो एक सिंपल सा है, क्लियर है। तो अब देखो क्या है कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है वो क्या होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, जो प्रोसेस सबसे पहले आया है उस पर डिपेंड, ठीक है। तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है इट इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू FIFO क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओके। क्यू की तरह इट विल इम्प्लीमेंटेड यूजिंग क्यू, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो द प्रोसेस विच कम फर्स्ट इट विल बी आउट फर्स्ट, ओके, क्लियर है। तो दिस इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू FIFO क्यू। अब देखो क्या है कि एज द प्रोसेस enters the ready queue, process control block is linked with the tail of the queue. So when the process become free, it should assign the process at the beginning of the queue. तो होगा क्या, अब देख लो क्या है, अब देखो क्या है कि हर एक प्रोसेस का कंट्रोल ब्लॉक बनता है, ठीक। तो ये बना माना हमने, सबसे पहले P2 आया, ठीक। इसके बाद क्या होगा, P3 विल इंटर इनटू द सिस्टम, ठीक। ये इसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, तो ये क्या होगा, इससे लिंक हो जाएगा, ठीक। तो अब ये क्या होगा कि जैसे ही एज सुन एज P2 इज कंप्लीटेड, नाउ इट इज लिंक्ड विद P3 एंड P3 द एग्जीक्यूशन ऑफ P3 स्टार्टेड, क्लियर है। अब क्या होगा, ये हमारा P3 है, ठीक। तो जैसे ही क्या होगा, P5 P6 आएगा, तो P6 का ये कंट्रोल ब्लॉक है, ठीक। तो क्या होगा, P3 क्या हो जाएगा, P3 विल बी लिंक्ड विद P6, ठीक, क्लियर है। तो क्या होगा, P3 विल बी लिंक्ड विद P6, और क्या हो जाएगा ये, व्हेन P3 completes its execution, okay, P6 will be start, execution of P6 will be, okay। तो अब थोड़ा सा समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो अब देखो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट मे बी प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव, jobs are always executed on first come first serve, it is easy to implemented and use, okay। However, this method is poor in performance and general wait time is high। अब देखो क्या है, इसमें जो मेजर प्रॉब्लम क्या होती है, मेजर प्रॉब्लम ये है कि हम मान लेते हैं कि कोई 10 प्रोसेस है एंड P9 द बस टाइम ऑफ P9 इज 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट उसका जो क्या कहते हैं ऑर्डर है, ठीक, क्लियर है, वो क्या है, रेडी क्यू में 8वें नंबर पे, तो इट मस्ट हैव टू वेट, ओके, क्लियर है। तो क्या होगा कि जो पहले आ गया, अगर पहले क्या हो गया कि कोई एक प्रोसेस आया दैट है बस टाइम इज टू मच है, मतलब क्या कहते हैं कि एक प्रोसेस इंटर किया और वो 100 सेकंड तक इंटर करेगा, देन ऑल अदर प्रोसेस हैव टू वेट,
ठीक है, तो नॉन प्रिएम्प्टिव के केस में थोड़ा सा दिक्कत करेगा। ठीक, क्लियर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिएम्प्टिव बना सकते हैं। ठीक, क्लियर है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। नाउ कम टू ए क्वेश्चन पार्ट। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व समझ में आ गया। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि ये क्वेश्चन के लिए है। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक, जिसमें प्रोसेस P1 P2 P3, ये इनकी ऑर्डरिंग है। सबसे पहले P1 आया, देन P2 आया, देन P3 आया, और उसका बर्स्ट टाइम कितना है, 24, 3 एंड 3। ठीक, क्लियर है। यानी कि क्या होगा, P1 विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर 24 सेकंड, P2 विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर 3 सेकंड, P3 विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर 3 सेकंड। ठीक, और उनका जो ऑर्डर है वो P1 P2 P3। ठीक, क्लियर, ये ऑर्डर। तो अब देखो क्या है कि अब हमें फाइंड करना है एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक, तो एवरेज वेटिंग टाइम कैसे फाइंड करोगे, हमें क्या करना है, सारे प्रोसेस का वेटिंग टाइम हमें कैलकुलेट। ठीक है, सारे प्रोसेस का क्या करना है हमें, वेटिंग टाइम फाइंड करना है। ठीक, तो अब देखो क्या है कि एज प्रोसेस P1 इंटर्स फर्स्ट, तो उसका वेटिंग टाइम तो 0 रहेगा। ठीक, एंड इट टेक्स 24 सेकेंड्स टू कंप्लीट। तो इसका मतलब क्या है कि ये देखो, ये जो कहलाता है ये हमारा गैंट चार्ट कहलाता है। ठीक, तो ये बहुत जरूरी है गैंट चार्ट बनाना। गैंट चार्ट बनाने का मतलब क्या है कि वी हैव टू शो द शेड्यूलिंग प्रोसेस। तो अब हमें क्या करना है, ये इस तरह से हम लोग शेड्यूलिंग कर देंगे। ठीक, तो अब देखो क्या है कि P1 सबसे पहले आया, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 और टू 24। तो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 टू 24, तो 25 26 27 28 29 एंड 30। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, एंड जो गैंट चार्ट है वो ब्लॉक वाइज रिप्रेजेंटेशन है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। ठीक, क्लियर है। तो P1 का वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, 0। P2 का वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, इट विल बी 22। ठीक, क्यों, क्योंकि क्या होगा कि द वेटिंग टाइम ऑफ P2 विल डिपेंड अपॉन द कंप्लीशन ऑफ P1। ठीक, क्लियर है। तो P1 पे डिपेंड करेगा, तो P2 का जो वेटिंग टाइम होगा दैट विल बी 24, एंड द वेटिंग टाइम फॉर P3 विल बी 27। ठीक, 27 पे ही स्टार्ट हो रहा है ना, देखो P1 start with 0, P2 start with 24 and move to 27, and P3 will start from 27 and end at 30। क्लियर है, क्यों, क्योंकि बस टाइम इसका 3 है। तो देखो गैंट चार्ट बनाने के लिए क्या करना है, हमें ब्लॉक्स लेना है। ठीक, क्लियर है। हम क्या करेंगे, इस तरह से एक ब्लॉक ले लेंगे। ठीक, ये हमारा ब्लॉक हो गया। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, ये इस तरह से बाइफरकेट कर देंगे, 0, ये 1, ये 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अगर P1 का जैसे मान लेते हैं 3 है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 0, ये 1, ये 2 और ये 3, ये क्या हो जाएगा हमारा P3 के लिए हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो आया उसमें हम लोग उतना ऐड कर देंगे, तो ये हमारा नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा। फिर जितना बस टाइम है वो ऐड करते जाएंगे, और इस तरह से हमारा गैंट चार्ट बन जाएगा। ठीक, क्लियर। तो गैंट चार्ट हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, गैंट चार्ट। और गैंट चार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा। ठीक, क्लियर है। तो अब देखो क्या है, P1 का वेटिंग टाइम 0 आया, P2 का 24 आ गया, P3 का 27। एवरेज वेटिंग टाइम कितना जाएगा, 0 + 24 + 27 डिवाइड बाय 3। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना आ गया, 17। और टर्न अराउंड टाइम अगर देखें तो P1 का 24, P2 का 27 एंड क्लियर है। तो ये टर्न अराउंड मतलब कंप्लीशन। बस टाइम हमारा कितना है, 3। ठीक, क्लियर है। अब देखो क्या है, इसी में ही अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे क्या था कि उसमें
जैसे उसमें क्या था, ऑर्डर था P1 P2 P3, ठीक है, उसमें ऑर्डर क्या था, P1 P2 और P3, ठीक। तो गैंट चार्ट में सबसे पहले क्या था, P1 आएगा, तो P1 का जो क्या था, ये 24 था बस टाइम, इसका बस टाइम 3 था और इसका बस टाइम 3 था, तो यानी कि 0 से 24 तक गया, ठीक। इसके बाद P2 आया, फिर P3 आया एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि यहाँ पे अब अगर इसका ऑर्डरिंग चेंज हो गया, ठीक है, इसका ऑर्डरिंग क्या हो गया, P2 P3 P4, ठीक है। तो अब देखो क्या है, पहले P1 P2 P3 था, इसमें था, अब P2 P3 P1 है, तो सबसे पहले क्या होगा, गैंट चार्ट में P2 की एंट्री होगी और उसमें हमने 3 ऐड कर दिए, फिर P2 के बाद क्या आया, P3 आया और हमने क्या कर दिया, 3 ऐड कर दिया, ठीक, क्लियर है। एंड देन लास्ट में क्या आया, P1 आया, तो हमने P1 का 24 ऐड कर दिया, ठीक। तो एवरेज कंप्लीशन टाइम तो अगर देखा जाए तो 30 आया तीनों का, क्लियर है, ठीक। तो P1 का कंप्लीशन टाइम जो वहां पे 24 था, 30 आ गया। P2 का वहां पे क्या था, पहले वाले में कितना था, P2 का 24 प्लस 3 27 था, P3 का 30 था, तो अब देखो पूरा चेंज हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन हमारा क्या है, टर्न अराउंड टाइम पे तो कंप्लीशन टाइम पे ऐसा कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिविजुअली फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर टोटल देखा जाए तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, टोटल 30 ही आया, ठीक है, लेकिन वेटिंग टाइम हमारा कम हो जाएगा। P2 के लिए कितना आ जाएगा, P2 के लिए 0 रहेगा वेटिंग टाइम, P3 के लिए 3 रहेगा और P1 के लिए क्या हो जाएगा, 6 रहेगा, ठीक। तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना आ जाएगा, 6 प्लस 0 प्लस 3, मतलब क्या हो जाएगा, 6 प्लस 0 प्लस 3 9 डिवाइड बाय 3, मतलब 3 आ जाएगा। तो पहले केस में कितना था एवरेज वेटिंग टाइम, देखते हैं पहले कितना आया था, पहले आया था 27, ठीक, ये देखो 27 है, अब एवरेज वेटिंग टाइम 3 होगा, ठीक। तो पहले के अब क्या है, इफ यू आर चेंजिंग द ऑर्डर इट मींस दैट कि द थिंग्स बिकम्स बेटर, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो क्या है कि इट डिपेंड्स अपॉन द, तो अब इसमें क्या होता है कि जो इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज, अब यू पीपल विल सी दैट कि पहले में 24 आया, इसमें कितना आया एवरेज वेटिंग टाइम, 3 आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सेकेंड ऑर्डरिंग इज गुड, ठीक है। तो अब क्या है कि अब डिसएडवांटेज देख रहे हो कि दोनों मतलब क्या है, बस टाइम सेम है, लेकिन जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो क्या है, पहले 24 आ रहा था, अब कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक। तो अब ये जो डिसएडवांटेज है वो हमारा क्या कहलाता है, कॉनवे इफेक्ट कहलाता है, ठीक, क्या कहलाता है, कॉनवे इफेक्ट। इट मींस इन एफसीएफएस इट मे पॉसिबल दैट शॉर्ट प्रोसेस बिहाइंड लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। तो कोई एक छोटा सा प्रोसेस है which takes 1 or 2 seconds but it enters into the system very last, okay, तो क्या होगा, it have to wait for a long time, ठीक, क्लियर है। तो वो ये हमारा क्या होता है, डिसएडवांटेज है, दैट इज कॉल्ड कॉन्वे, क्लियर है। तो एफसीएफएस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी, एनीवन इफ यू वांट टू डिस्कस यू कैन डिस्कस। किसी को कोई प्रॉब्लम है, रोल नंबर 61 समद, रोल नंबर 61 समद, एहसान अंसारी, यस सर। कोई प्रॉब्लम, नो सर। समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है। ये थोड़ा सा देख लो, ये जो है ये हमेशा आएगा 10-15 नंबर में, ठीक है। तो अभी तो मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कराया है, ठीक है, आगे हम थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन कराएंगे, अगर कोशिश। ऑब्जेक्टिव मोड में आता है तो कैसे क्वेश्चन तो देंगे सर? क्या चीज, ऑब्जेक्टिव मोड में आता है, तो ऑब्जेक्टिव मोड में आएगा कि फाइंड द एवरेज टाइम फॉर फॉलोइंग प्रोसेस, ठीक है। तो उसमें ऑर्डर दिया रहेगा कि इसके बस टाइम और ये दिया हुआ है, ऑर्डर ये है, एवरेज वेटिंग टाइम 4-5 ऑप्शन दिया रहेगा, यू हैव टू कैलकुलेट एंड टिक,
ठीक है। ओके। हाँ, अगर